طریقے سے فریاد کرتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کڑی جو ہے, پردے کا اہتمام کر کے دنیا کو بتایا تھا. آج ہماری گھر کی بیٹی, یہی کل پرسوں کی بات تھا, جو میلہ ہمارے علاقے میں لگے گا, ہماری گھر کی بیٹی بے پردہ میلوں کی زینت بنے گی. یہ مسلمانوں, ایک بیٹی دوسرے نوجوان لڑکے سے جسم کو ٹچ کرتی ہوئی جائے گی. باپ بھی کھڑا موجود ہے, بھائی بھی کھڑا موجود ہے, بیٹا بھی موجود ہے. اگر کسی کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی اپنی بہن کو میلے جیسی پوری جگہ سے روک لے, میری قوم کے لوگ, یہ میلہ میرے آقا پیغمبر اسلام نے سب سے پوری جگہ بازار اور میلے کو کہا ہے, اور قوم مسلم کی بیٹیاں آج میلوں میں سب سے زیادہ شرکت کر رہی ہیں. میری قوم کے لوگوں, تمہیں میلے میں خود نہیں جانا چاہیے, اپنے گھر کی بیٹیوں کو بھی بچانا چاہیے. جس دن ہر مسلمان ان تمام باتوں پر عمل کر لے گا, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے سماج کی اصلاح ہوگی, ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی. کیونکہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں غلط روی سے منازل کا موت بڑھتا ہے, مسافر و روی سے کارواں بدلتا ہے. وہ جگہ جگہ کے تک چکے ہیں تمہیں ہنگامے, نشاط لذت خوابے گرا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی ہاں, کیونکہ میں گھڑی بھی بول رہا ہوں, مجھے دلہریاں بھی بولنا ہے, ٹھیک ہے. تو حضرات محترم, کہنے کا مقصد یہ ہے, حضرت سغرا فاطمہ اپنی پھوپھی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے. پھوپھی آپ گزارش کر لیں, حضرت سیدہ زینب نے ان تمام باتوں کو اے مسلمانوں اپنے آپ میں کہہ کر روکا ہے. اس کے بعد دوڑی دوڑی اپنے بھیا علی اکبر کے پاس وہ نپٹ جاتی ہے. کہتی ہے بھیا علی اکبر, آپ چاہے تو میں آپ کے ساتھ, بابا کے ساتھ سفر پر جا سکتی ہوں. حضرت امام علی اکبر نے اپنی بہن حضرت سغرا کو قریب بلایا, کہا اے میری بہن, تیری طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے کہ تجھے ساتھ لے جایا جائے. بہن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں تجھے دیوانے کے لیے ضرور آؤں گا. حضرت سغرا فاطمہ کی اپنے آپ میں, اے مسلمانوں, جو ان کی تمنا آرزو تھی نا, حقیقت میں اپنے آپ میں تبنے لگی. حضرت سغرا جب تک ہار گئی ہے, خاندان کے تمام لوگ جمع ہے, خاندان کی تمام بیٹیاں جمع ہے. حضرت سغرا ایک چیخ مارتی ہے, کہتے خاندان والوں تم سفر پر جاؤ, مگر میری ایک شرط کو پورا کر کے جاؤ, میری ایک بات کو پورا کر کے جاؤ. حضرت سیدہ زینب طرف جاتی ہے, کہتی ہے بیٹی سغرا, اس وقت تجھے شرط کی پڑی ہے, تجھے کون سی خواہش و تمنا کو پوری کرانی ہے؟ حضرت سغرا نے کہا تھا, میری پھوپھی سنو, میں یہ چاہتی ہوں کہ تو آپ لوگ سفر پر جائیے, مگر میرا بھیا علی اکبر مجھے ایک بار چل کر دکھا دے, میں اس کے چلنے کے انداز کو دیکھنا چاہتی ہوں. سیدہ زینب نے کہا تھا, اے بیٹی سغرا, تو جب سے پیدا ہوئی ہے اپنے بھیا علی اکبر کے چلنے کے انداز کو دیکھ رہی ہے. حضرت سغرا نے کہا تھا کہ میں مدینہ کی زمین پر اپنے لالا کے صحابہ سے سنی ہوں کہ میرا بھیا علی اکبر جب چلتا ہے تو ایسا پتا چلتا ہے کہ میرا بھیا علی اکبر نہیں بلکہ میرے نانا مصطفیٰ چل کر آتا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا, امام حسین, امام حسین, نعرہ تکبیر. حضرات محترم, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اب مدینہ کی زمین سے نکل رہا ہے. مدینہ کی زمین سے جب یہ قافلہ نکلا ہے نا, مدینہ کے اندر آہو فقہ بلند ہو گئی ہے. حقیقت میں مسلمانوں, ہر کسی کا دل اپنے آپ میں مایوس ہو گیا ہے, چہرہ مایوس ہو چکا ہے. حضرت امام حسین کا قافلہ مدینہ المنورہ کو چھوڑ رہا ہے, آہو فقہ بلند ہو رہی ہے, کیونکہ نماز رسول مدینہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, مدینہ کی گلیوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کی گلیوں کو چھوڑ کر نکلے ہیں, حقیقت میں چلتے چلتے مکہ المکرمہ کی پاک زمین پر پہنچے ہیں. مکہ کی زمین پر حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن زبیر, صحابہ کرام حضرت امام حسین کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. حقیقت میں مسلمانوں, مکہ کے اندر خوشیوں کا ماحول ہے, کیونکہ نواز رسول مکہ کی زمین پر آئے ہیں. حقیقت میں مسلمانوں, آج بھی جب نبی آخر الزماں کا کوئی دلارا, کوئی بیٹا ہمارے گھر میں آ جاتا ہے, ہمارے گاؤں میں آ جاتا ہے, تو خوشیوں کا
का माहौल हो जाता है, लोग खुशियों मसरत और शादमानी में डूब जाते हैं। और नमाज रसूल जिस जगह पर तशरीफ ले जाए वहाँ का माहौल तो अलग हो सकता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीधे मुसलमानों अपने आप में मदीनतुल मुनव्वरा की ज़मीन से मक्का की ज़मीन पर पहुंचे हैं। जानते हैं कहाँ पर ठहराव होता है? उनकी नानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में हज़रत इमाम हुसैन का ठहराव हुआ। खानदान के लोगों वहीं पर जिंदगी को गुजार रहे हैं। इधर कूफा के बेवफाओं ने अपनी बेवफाई को शुरू कर दी है, कूफा के गद्दारों ने अपनी गद्दारी को शुरू कर दी है। हकीकत में मुसलमानों कूफा की ज़मीन से अब हुतूत पर हुतूत आ रहे हैं। कोई फिक्रा नवाज़ रसूल आप हमें आ जाए, हमारा कोई कायद नहीं है, हमारा कोई इमाम नहीं है, आप हमें आ जाए और हमारी क़यादत करें, हमारी इमामत करें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हकीकत में मुसलमानों जब इन तमाम मामलात को सुना है, जब हुतूत पर हुतूत आने लगे, तैयारी करने लगे मक्कतुल मुकर्रमा की ज़मीन से कूफा जाने की, जब तैयारी करने लगे ना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर और तमाम सहाबाई किराम नबी आखिर ज़मां के जो मक्का की ज़मीन पर मौजूद थे, वो हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में आए और कहने लगे नवाज़ रसूल आपको कूफा की ज़मीन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कूफा के लोग बेवफा है, कूफा के लोग बेदर्द है, कूफा की ज़मीन बेदर्दों की ज़मीन है, कूफा की ज़मीन बेवफाओं की ज़मीन है। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा था कि ऐ लोगों तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, वो हुतूत पर हुतूत भेज रहे हैं। अगर आज मैं उनके कहने पर ना गया ना तो कल मैदान महशर कायम होगा। उनकी बारगाह में मुझसे जब सवाल किया जाएगा कि नवाज़ रसूल आपको अपना कायद बनाकर वो लोग पुकार रहे थे, आपको अपना इमाम बनाकर आप वो लोग पुकार रहे थे, आप कूफा की ज़मीन पर क्यों ना गए थे? उस वक्त मैं रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हो जाऊंगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस तरीके से अपने जुमलों को पेश करते हैं। मुसलमानों जब कूफा के मक्कतुल मुकर्रमा की ज़मीन पर लोगों ने देखा कि नवाज़ रसूल मस्जिद है वो जाएंगे कूफा की ज़मीन पर, उन लोगों ने कहा नवाज़ रसूल आप पहले आप कूफा ना जाए, अपना किसी नाइब को कूफा की ज़मीन पर भेजें, जब कूफा के हालात को वो खत में लिखे तब आप यहाँ से सफर करें। मुसलमानों उसके बाद अपने चचेरे भाई हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील से कहा जाता है मुस्लिम बिन अकील तुम्हें कूफा की ज़मीन पर जाना होगा, वहाँ के हालात को देखना होगा, अगर हालात साजगार रहे तो कूफा की ज़मीन से मुझे मैसेज करना, मुझे खबर करना, मैं फिर मक्का की ज़मीन से कूफा के लिए सफर करूंगा। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा की ज़मीन पर जाने की तैयारी करने लगे। एक मुसलमानों उनके दो शहजादे हैं, एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम इब्राहिम है। मोहम्मद और इब्राहिम जब अपने पापा को कूफा की ज़मीन पर जाता देखे ना, अपने पापा के पास से निपट जाते हैं, कहते हैं पापा हम भी आपके साथ सफर करना चाहते हैं, हम भी आपके साथ कूफा की ज़मीन पर जाना चाहते हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा था बच्चों ये जो सफर है ना ये कोई आसान सफर नहीं है, तुम मक्का की ज़मीन पर रहो, तेरे तुम लोगों के लिए यही भलाई है। लेकिन एक मुसलमानों को बच्चों को हकीकत में जामे शहादत को नोश करना था, अल्लाह की मर्ज़ी थी। वो बच्चे हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तलब कर कहते हैं बाबा हम भी आपके साथ मुसाफिर बनना चाहते हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हकीकत में मुसलमानों अपने सफर का आगाज करते हैं। कूफा की ज़मीन पर पहुंचे ना, कूफियों ने बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया है। पूरे कूफे के अंदर हकीकत में मुसलमानों गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया है। इनके अंदर कूफा के बेवफाओं, कूफा के गद्दारों ने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन के नाम पर 40,000 कूफियों ने बैठक की है। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब इस माहौल को देखा है और एक खत मक्कातुल मुकर्रमा की ज़मीन पर इमाम हुसैन की बारगाह में लिखा है। मुसलमानों इमाम मुस्लिम बिन अकील पर अगर गुफ्तगू करूंगा तो इसी गुफ्तगू में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। उनकी शहादत, उनके साथ मामला क्या हुए अगर उस पर बोलूंगा तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। मुझे इख्तिसार से करबला का एक वाकया बयान करके मुझे निकलना है, क्योंकि मैंने 11 का वक्त दिया था, 11 से ज्यादा हो रहा है। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ के माहौल को देखने के बाद बात लिखते हैं। इधर कूफा के बेवफाओं ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बुलाकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जुल्म सितम के पहाड़ को इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया। इधर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने काफ़िले के साथ मक्का की ज़मीन से निकलकर कूफा की ज़मीन का सफर करते हैं। एक मुसलमानों जानते हैं उस वक्त मक्का का जो गवर्नर था ना, हज़रत इमाम हुसैन को रोकने की पूरी कोशिश करता है। इमाम हुसैन रोकने का तैयार नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफर आते हैं। एक मुसलमानों के कौन है उनमें अब्दुल्लाह इब्न जाफर हज़रत इमाम हुसैन के पहलुई है। हज़रत
सैयदा ज़ैनब के शौहर ताजदार है। हकीकत में मुसलमानों हज़रत इमाम हुसैन से अब्दुल्लाह बिन जाफर ने कहा था कि नवाज़ रसूल आप कूफा की ज़मीन पर ना जाए, कूफा की ज़मीन बेवफाओं की ज़मीन है, कूफा की ज़मीन गद्दारों की ज़मीन है, आप ना जाए तो बेहतर होगा। हज़रत इमाम हुसैन ने अब्दुल्लाह इब्न जाफर से कहा था कि अब्दुल्लाह इब्न जाफर तुम्हें खबर नहीं है, वो हुदूद पर हुदूद दिख रहे हैं, अगर मैं कूफा की ज़मीन पर ना जाऊंगा तो अल्लाह की बारगाह में कल शर्मिंदा हो जाऊंगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों सफर करके चले हैं। अगर सफर पर अगर एक खतीब गुफ्तगू करता है तो एक दिन उसको सफर पर गुफ्तगू में लग जाता है, क्योंकि बहुत से मामलात सफर में हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हकीकत में मुसलमानों करबला की ज़मीन पर पहुंच गए, क्योंकि मुझे इख्तिसार से जल्दी में गुफ्तगू को समेटना है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कूफा की ज़मीन पर करबला के मैदान में पहुंचे ना, एक मुसलमानों हज़रत हुर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनके काफिलों को करबला के मैदान की तरफ ले गए हैं। हज़रत इमाम हुसैन का खेमा लग चुका है, यजीदियों का खेमा एक तरफ लगा हुआ है। मुसलमानों कहने का मकसद है कि नवाज़ रसूल करबला की ज़मीन पर पहुंच चुके हैं। मुहर्रमुल हराम से उन पर खाना बंद कर दिया गया है, उन पर पानी को बंद कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। खानदान अहले बैत के चश्मो चिरागों को एक कतरा पानी नहीं देना है। हज़रत इमाम हुसैन पर पाबंदी लगाई गई है। 7 मुहर्रम की तारीख गुजर गई, 8 मुहर्रम की तारीख गुजर गई, अभी मुहर्रमुल हराम की जब तारीख आई है ना, असर की नमाज के बाद हज़रत इमाम हुसैन तलवार से अपने माथे को टेप लगाकर बैठे हैं। अचानक ईद के आगोश में पहुंच जाते हैं। इधर दुश्मन अमर बिन साद अपनी लश्कर को लेकर नवाज़ रसूल के खेमे की तरफ घोड़ों टापों की आवाजों के साथ बढ़ रहा है। जब सज्जदा ज़ैनब ने कानों में ये आवाज टकराई है, हज़रत सज्जदा ज़ैनब मुसलमानों तड़प जाती है, दौड़ी अपने भैया इमाम हुसैन की बारगाह में आती है, कहती है भैया ऐसा पता चल रहा है दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमें अपने आप में आज ही से जंग का आगाज कर दिया जाएगा। नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन अपने भाई हज़रत इमाम अब्बास को बुलाते हैं, कहते हैं भाई अब्बास जाकर अमर बिन साद से कह दो कि एक रात की मोहलत दे दे, कल का जब सुबह का सवेरा नमदार होगा तब मामला देखे जाएंगे, सिर्फ एक रात की मोहलत ले लो। मुसलमानों एक रात की मोहलत मांगी जाती है। एक रात की मोहलत क्यों मांगी गई? अल्लाह की इबादत करने के लिए, रब की बारगाह में सजदा करने के लिए, तस्बीह और तहलील को खूब पढ़ने के लिए। हकीकत में मुसलमानों इमाम हुसैन ने नबी की रात में तस्बीह की जो रात लगती है उस रात को मुसलमानों एक मोहलत के तौर पर रात मांगी और अल्लाह की इबादत किया। आज का मुसलमान उसी रात में अज्जाशियों के बाजार को गर्म करने पर आमादा है, ढोल बरदाशों की गूंज पर अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा है, अपने वजूद का खून बहाने पर आमादा है। मेरी कौम के लोगों जरा तारीख करबला को पढ़ने की कोशिश करो। जिस नबी की रात में जिसको तस्बीह की रात कहा जाता है, जिसमें तुम नंगा नाच मेले के नाम पर लौटना मचाते हो ना, उसी तस्बीह मुहर्रमुल हराम की जो रात है उसमें देखो नवाज़ रसूल एक रात की मोहलत दे रहे हैं। किस लिए? मुसलमानों अल्लाह की इबादत के लिए। निशानी नमाज की अदायगी के बाद इमाम हुसैन तमाम साथियों को जमा करते हैं। हकीकत में मुसलमानों जमा करने के बाद इमाम हुसैन ने चिराग को बुझा दिया है। उसके बाद अपने साथियों से कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, मैं तुमसे जैसा बेहतर दोस्त किसी के दोस्त को नहीं समझता हूँ, अपने भाइयों से बेहतर किसी भाई को नहीं समझता हूँ। मैं तुम्हें इजाजत देना चाहता हूँ, जो जाना चाहे वो जा सकता है, इसलिए कि जो सुबह का सवेरा होगा ना ये बड़ा खतरनाक सवेरा होगा। इसमें खून की होलियां खेली जाएगी, खून के कतरात जारी किए जाएंगे। ये कूफा के लोग मेरे खून के दुश्मन है, मेरा सर कटाम कर देंगे ना, इन्हें अपने आप में चैन और सुकून मिल जाएगा। मैं तुमसे तुम्हारी अभी जिंदगी पड़ी हुई है, तुम अपनी जिंदगी को जाकर खूब अच्छी तरीके से जी लो। हकीकत में मुसलमानों इमाम मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने खड़े होकर कहा था नवाज़ रसूल हम करबला के मैदान में दावत खाने के लिए नहीं आए थे, करबला के मैदान में मेहमानी करने के लिए नहीं आए थे, इसलिए नहीं आए थे कि हमारे नारे तकबीर नारे रिसालत से हमारा इस्तकबाल किया जाएगा। हम यहाँ करबला के मैदान में आए हैं, आपका सर कटने से पहले हम अपने सर को कटाएंगे, दीन मुस्तफी पे अपनी जान की कुर्बानी देंगे। ऐ मुसलमानों हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथियों ने कितना जज्बा पैदा किया है। हकीकत में मुसलमानों रात गुजारी जा रही है, खेमे में अल्लाह की इबादत की जा रही है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है। जब नमाज फजर का वक्त हुआ ना, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बेटे अली अकबर को आवाज देते हैं, बेटा अली अकबर
अकबर जरा मैदान करबला में चला जा, अजान की सदाओं को बुलंद कर ले। लेकिन ए बेटा अजान के साथ साथ ना तू जरा ज़मीन करबला का जायजा दे लेना, इसलिए कि कल का जो सुबह होने वाली है उसमें हम और आप हमें अपने आप में उनसे जंग करना पड़ेगी। हकीकत में हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों सीधे मैदान करबला में गए, अजान की सदाओं को बुलंद करते हैं, अब ज़मीन करबला का जायजा लेते हैं, करबला के मैदान को देखते हुए चलते हैं। हकीकत में चलते चलते एक मैदान में पहुंचे हैं, एक जगह पर पहुंचे हैं, क्या देखते हैं कि एक खातून है जो नकाबपोश है। हकीकत में वो खातून ज़मीन करबला को अपने आंचल से साफ कर रही है, अपने दुपट्टे से साफ कर रही है, मुसलमानों कंकरों को चुन चुन कर अपने दामन में समेट रही है। हज़रत इमाम अली अकबर ने उसके बेदर्दी अंदाज को रोने को देखा है। इमाम अली अकबर तरफ जाते हैं, ये कौन सी खातून है जो करबला के मैदान में आकर इसका अपना कोई क्या दुनिया से जाने वाला है, जो करबला के मैदान को इस तरीके से साफ कर रही है, यहाँ के कंकरों को साफ कर रही है, यहाँ के पत्थरों को साफ कर रही है। हज़रत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तरफ जाते हैं, ये कौन सी खातून है जो कूफा की ज़मीन पे इस तरीके से बेदर्दी के साथ हो रही है। पूरा नक्शा अपनी निगाहों में जमा कर मुसलमानों सीधे अपने बाबा की बारगाह में पहुंचे हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने पूछा था बेटा अली अकबर, क्या तुमने अज़ान की सदाओं को बंद कर दिया?